Good morning, ma'am. Good afternoon to all of you. Today we will discuss about the BT question number 5. I Yes, think ma'am. today is the last class for this chapter, area and perimeter. From next class we will go to the data handling chapter. Okay, this is the last chapter, I think. Ma'am, data handling. Data handling or statistics, what your chapter name? Data handling. Yes. Data handling. हाँ, in 6 Chapter class 13, this is ma'am. statistics. हाँ, यही चैप्टर आपका बचा है ना? बस मैम उसके बाद भी कुछ एक मैम 11 चैप्टर बचा हुआ है. 11 चैप्टर बचा है. मैम 11 पेरीमीटर ही है. 11 तो अभी हो रहा है. हाँ, ये तो लास्ट है. मैम डाटा 14 है. मैम विजुअलाइजिंग सॉलिड के बाद भी एक और चैप्टर है, विजुअलाइजिंग सॉलिड भी बाकी है. अच्छा, चैप्टर 14. ओके. See, in this figure 11.23, see what the figure is given. Draw the figure. That is PQRS, named it PQRS, and PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR, and PQ equal to 60 centimeter. PQ has given 60 centimeter length, and SR is 36. SR, this much has given 36 centimeter. And QR has given 25 centimeter. Okay, find the area of quadrilateral PQRS. We have to find out the area of PQRS. Okay, so ये अगर इस तरह से फिगर क्वाड्रिलेटरल फिगर दिया है, but we can't not say what type of shape of this. हम इसको शेप में लाने के लिए, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि इससे हमको दो फिगर मिल जाएगा और अकॉर्डिंग टू द शेप हम इसको RST लिख देते हैं. यहाँ पे देखो, सी दिस इज वन ट्राइंगुलर शेप एंड दिस इज, you can say this is one rectangle, or we can say parallelogram. Okay, so first we find out the area of PSRT, and then we have to find out the area of RQT. Okay, then you add these two areas, then we have to find out the quadrilateral of area PSRQ. Okay, तो दो फिगर का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट सी SR is parallel to PQ. हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर दिए, इसका मतलब SR is equal to PT. SR is equal to PT मतलब है this is also 36 centimeter. Then what is the length of TQ? TQ का लेंथ कितना होगा? 60 minus 36. How much? 24 centimeter. Yes. 24 centimeter. Okay, now we have to find out the area. See, in this triangle, this is one perpendicular, this makes 90 degree here. According to Pythagoras theorem, we have to find out the value of RT. You write down, in triangle RTQ, RT square is equal to RQ square minus TQ square. RQ square minus TQ square is equal to RQ हो गया 25 square minus 24 square is equal to how much? 49. You find out the square of 25, then 24, then you subtract this, you have got 49. Then RT is equal to how much? 49 root over of 49 equal to 7 centimeter. See,
This is 7 centimeter. Now we can find out the area of triangle, right angled triangle RTQ is equal to half into base into height. Okay, the base equal to 24 into height is 7. Then you cut 12. 12 7 jar 84 centimeter square. Okay. Now area of PSRT. अब इसका एरिया निकालेंगे. PSRT. Here I am writing area of PSRT. It is a rectangle. Then base into length into breadth, we can say. Or if it is a parallelogram, you can say base into altitude. 36 into 7. How much? You multiply and tell me how much it is. 252. Yes. 252 centimeter square. Now area of PQRS. PQRS is equal to, you add them, 252 plus 84. 252 plus 336 centimeter square. Now completed. Understood everybody? समझ मैम. हाँ मैम SRPT को मैम हम रेक्टेंगल कहेंगे कि पैरेललोग्राम? जो भी आप बोलो, रेक्टेंगल कहो या फिर पैरेललोग्राम कहो, दोनों का आपका एरिया फार्मूला क्या है? अगर रेक्टेंगल कहेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर आप पैरेललोग्राम कहेंगे तो बेस इंटू अल्टीट्यूड. दिस इज आल्सो अल्टीट्यूड सी, क्योंकि इट मेक्स 90 डिग्री हियर आल्सो. इट इज 90 डिग्री. ओके, you can say as a parallelogram or you can say a rectangle. Both are correct. Okay? Yes ma'am. Okay. Write down. Excuse me ma'am. हाँ. मैम एक बार आप ये शॉर्ट में फिर से बता देंगी, मैं लेट ज्वाइन की थी. Okay. See, figure has given PQRS. बुक में देखो, आपको PQRS एक क्वाड्रिलेटरल दिया है. कुछ लेंथ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका लेंथ क्या है? PQ का लेंथ आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. देखो PQ दिया है 60 सेंटीमीटर एंड SR हैज गिवन 36 सेंटीमीटर हैज गिवन. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द होल फिगर. मीन्स PQRS का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे. वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ शेप इट इज, so that's why we have to first find out the shape of the figure. तो कोई भी शेप में इसको लाने के लिए we have to draw a line RT perpendicular like this. Okay, then see now SR length is equal to PT length, which is equal to 36. Mute yourself. जहां से आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट योरसेल्फ. दैट इज 36 सेंटीमीटर. ये भी हो गया 36 सेंटीमीटर. देन TQ इक्वल टू हाउ मच? बिकॉज PQ आपका 60 दिया था. 60 माइनस 36 तो 24 सेंटीमीटर आपको मिल गया. देखो ये साइड में देखो, RTQ इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल यू नो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. हम इस लाइन का लेंथ निकाल सकते हैं. आई हैव फाइंड आउट हियर 25 square minus 24 square is equal to 49 and you find out the root over RT equal to 7 centimeter. Means इसका लेंथ हमको 7 centimeter मिल गया. This is the base and this is the height. Then you can find out the area of the triangle. Area of the triangle is equal to, yeah, I have written here RTQ, half into base into height. Half into base हो गया 24 into height 7 centimeter. Then you find out 84 centimeter. This is the area of the triangle. Now we have to find out the area of PTRS, or you can write PSRT. Okay, this is one rectangle. What is its area? Length into breadth.
means 36 into 7 is equal to 252 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ P, अभी हम इसका भी एरिया मिल गया, देन ये ट्राइंगल का भी एरिया मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा फिगर का हमको एरिया मिल जाएगा. दैट इज एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PTRS प्लस एरिया ऑफ RTQ. दैट इज 252 प्लस 84 इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज योर आंसर. नाउ अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Okay, shall I rub this one? मैम आपने लास्ट टाइम ऐड क्यों किया? क्योंकि पूरा पिक्चर का आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. तो PQRS में दोनों को ऐड नहीं करेंगे तो कितना फाइंड आउट कैसे करेंगे? PQRS मीन्स बड़ा वाला फिगर PQRS. हम ये पूरा का एरिया एक साथ हम नहीं निकाल सकते हैं, ये कोई शेप में नहीं दिया है. हम इसको दो शेप में पहले कन्वर्ट किए, एक ट्रायंगुलर शेप, एक रेक्टेंगल शेप, दोनों का एरिया फाइंड आउट किए, फिर दोनों को ऐड कर दिए ताकि बड़ा वाला शेप का एरिया मिल जाएगा. ओके ओके मैम. वेरी गुड. नाउ shall I rub this one? यस मैम. यस मैम. ओके. यस मैम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तो बीटी मुझे लगता है बीटी कंप्लीटेड. वी गो टू द हॉर्स. नो मैम, 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. 3 क्वेश्चन. ये बेटा होमवर्क था, हॉलीडे होमवर्क था. अभी भी एक एक क्वेश्चन फिर हम बनाएंगे, तो आज ही मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है. 6. ओके मैम. मैम आप क्वेश्चन नंबर 8 बता. खाली 8 बता देंगे हो जाएगा. 6 7. यस. ओके. 6 7 हो चुका है ना बेटा? यस मैम. ओके. यस. ओके, वेरी गुड. द ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A. आप एक ड्रॉ करो पिक्चर, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ओके. एंड A एंगल पर राइट एंगल. यू दिस इज आई हैव ड्रॉन एज राइट एंगल ABC. देन AD is drawn perpendicular to BC. AD BC साइड के ऊपर AD one perpendicular, named it D, and also it perpendicular means it makes 90 degree to the side BC. Okay. If AB equal to 5 centimeter, AB has given आपको 5 centimeter and AC 12 centimeter. AC 12 centimeter and find the area of ABC. You have to find out what the area of ABC triangle कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ AD. दो चीज आपको फाइंड आउट करना है. लेंथ AD इक्वल टू हाउ मच. ओके. दो चीज आपको AD का लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करना है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आई थिंक यू हैव नो डाउट अबाउट द एरिया. हाँ, व्हाई? Because this is right angled triangle means you know the formula half into base into height. Yes or no? Yes, into half. Yes. Area of Yes, ma'am. triangle ABC is equal to, you know, half into base equal to how much? 5 into what is its height? 12 centimeter. You got it. 6 is equal to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हो गया आपका एरिया ऑफ ABC मिल गया. ओके. अब दिया है AD का लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे? देखो, एक है हम इसको जब बेस लेते हैं, ये हो गया इसकी परपेंडिकुलर. हम अगर इसी ट्राइंगल में हम इसको बेस नहीं ले रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम BC को हम बेस लेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? AD होगा. यस और नो? अगर हम BC को बेस लें, कोई भी लाइन को बेस ले सकते हैं. हम अगर BC लाइन को बेस लेंगे तो AD उसका हो जाएगा परपेंडिकुलर. ओके. तब इसका एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? BC इंटू AD. एरिया ऑफ, देखो, एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल इज इक्वल टू, आई कैन राइट BC इंटू AD. हम इस तरह से भी लिख सकते हैं.
अगर हम BC को हम लेंगे इसका बेस एंड AD इज इट्स परपेंडिकुलर, हाफ इंटू, ये लिखेंगे हाफ इंटू BC इंटू AD, तो व्हिच इज इक्वल टू, आपको ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका एरिया 30, दिस इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाफ इंटू BC इंटू AD इक्वल टू हाउ मच 30। हमको अभी BC नहीं पता है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये साइड में इसको इज इक्वल टू 25 प्लस 144 169, देन BC इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 69 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यस और नो। तो आप यहाँ पे लिखो हाफ इंटू BC, हमको मिल गया कितना 13 इंटू AD इज इक्वल टू 30, देन AD इक्वल टू 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जहां से भी टीवी का आवाज आ रहा है। देखो अब 60 से 4.6, हाँ ये डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, आप 4.61 दो स्टेप करके इसको छोड़ दो, 4.61 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ पूछो। वहाँ पे तो एरिया ऑफ ABC तो पहले से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है, तो नीचे फिर से क्यों लिखा गया एरिया ऑफ ABC? एरिया ऑफ ABC हम दूसरी तरह से, हम अभी क्वेश्चन में क्या है, हमको एरिया तो मिल गया, दूसरा क्वेश्चन है, अब देखो AD लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, AD ये भी एक परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, लाइन BC के ऊपर AD एक परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए हम इसका एरिया भी हम उस तरह से भी लिख सकते हैं, जब हम BC को बेस ले रहे हैं और AD को हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, हम इसको इस तरफ से लिखेंगे हाफ इंटू BC इंटू AD। क्यों इस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में AD फाइंड आउट करने के लिए बेटा दिया है, इसीलिए आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो आप AD कैसे फाइंड आउट करिएगा, तो इसीलिए हाफ इंटू BC इंटू AD सेम होगा, एरिया तो आप इसी फिगर का सेम है 30 है, बट हम BC को बेस ले रहे हैं और AD को हम परपेंडिकुलर और हाइट ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखे। ओके ओके मैम, राइट डाउन, इसको लिख लीजिए। Completed? Yes ma'am. Okay. Shall I rub this? No ma'am. और बताओ हार्ट्स में कौन सा क्वेश्चन बताए, 2 and 3, 1 2 2 1 ऑलरेडी डन, 2 मैम 3 बताइए, 2 and 3 और एनरिचमेंट क्वेश्चन में 2। ओके आज ही हम इसी चैप्टर को बेटा कंप्लीट कर देते हैं, कल हम डाटा हैंडलिंग पढ़ाएंगे, नेक्स्ट, कल तो नहीं, नेक्स्ट क्लास। मैम 1 का C क्या होगा, ब्रेन टीजर्स मैम 1 3 हो चुका है मैम, 2 नहीं पता है। हाँ मैम 3 मैम नहीं पता, 1 2 हो चुका है। ओके आई हैव लिसनड योर क्वेश्चन 2 and 3, हो चुका है पर 2 नहीं बन गया। बेटा at first you tell me completed? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes ma'am. Next hearts, question number 2. See what the question has given. AD is the diameter of a circle of radius 6 centimeter. At first you draw the figure what is given in your book. Okay, now draw a line and named it A, B, C, D like this.
A, that is A, B, then this is C, and this is D. And this is the shaded portion as given in your book. Now, the AD is the diameter of the circle of radius 6 cm. AD is the diameter. AD equal to diameter. तो AD equal to diameter of radius 6 cm means इसका लेंथ कितना होगा? 6 into 2, 12 cm. आपको कोई भी रेडियस यहाँ पे पता नहीं है, यहीं कहीं सेंटर आएगा इन बिटवीन. दिस इज द सेंटर O. तो इसका जो रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर रेडियस में, AD इज द डायमीटर. एंड AB इक्वल टू BC. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD. तीनों सेम दिया है. AB जो लेंथ दिया है, BC भी सेम लेंथ दिया है, एंड CD सेम लेंथ है. इसका मतलब है ये टोटल मिलाकर कितना लेंथ है? AD इक्वल टू आपका 12 है कि नहीं? तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू 12/3, 4 सेंटीमीटर. ईच चीज का लेंथ कितना होगा? AB भी 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. Semicircles are drawn with AB and BD as diameters. Semicircles are drawn. ये जो सेमी सर्कल है, ये देखो, ये इसका AB हो गया डायमीटर. ये वाला खाली सर्कल को देखो, इसके ये एक सेमी सर्कल है, ये एक छोटा सा सर्कल अगर हुआ, ये उसका डायमीटर हो गया, ये एक सेमी सर्कल. एंड BD ऑल्सो 1 डायमीटर. अगर ये एक सेमी सर्कल हुआ, छोटा सर्कल का देखो, ये भी आधा एक सेमी सर्कल है, ये भी BD हो गया 1 डायमीटर. AB 1 डायमीटर एंड BD हो गया 1 डायमीटर. ओके, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये जो शेडेड रीजन दिया है, इसका एरिया एंड पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो आपको एक एक चीज का अभी एरिया, हम पहले रेडियस निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे. पहले रेडियस निकाल देते हैं. AB आपको कितना मिला है? 4 सेंटीमीटर. देन इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस ऑफ AB सेमी सर्कल. ये एक एक चीज आप ध्यान देकर देखिएगा. क्वेश्चन आसान है, बट आप इसी को ही ध्यान दीजिए. पहले AB जो सेमी सर्कल है, इसका आपको डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर. इसका रेडियस कितना होगा? 4/2, 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. हाँ, अब इसका एरिया फाइंड आउट कर दो. एरिया ऑफ AB सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो पाई हो गया 22/7 इंटू 2 इंटू 2. तो आपका कितना हो रहा है? 88/7. ओके, 88/7. ये नहीं तो आप पाई आर स्क्वायर इतना करके अभी रख दो, ठीक है? क्योंकि बाद में इसका जो काटेंगे ना, वो जल्दी ही कट जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे रख देते हैं इसको. ठीक है, अब 1 मिनट, इसको एरिया अभी नहीं निकालेंगे, एक साथ लिखेंगे, एक एक करके, उतना जगह भी नहीं होगा. अब देखो, नेक्स्ट हो गया रेडियस ऑफ सेमी सर्कल AD. ये भी एक, इसका भी एक एरिया निकालेंगे. AD ये पूरा हो गया आपका 12 सेंटीमीटर. अब लिखते हैं रेडियस ऑफ, एक एक चीज को ध्यान दो. रेडियस ऑफ सेमी सर्कल AD इज इक्वल टू, ये टोटल था आपका 12 मीन्स ये 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है. अब नेक्स्ट हो गया, ये एक हो गया BD. अब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल BD इज इक्वल टू, ये यहां से यहां तक कितना है? ये हो गया 4, ये हो गया 4, 8 सेंटीमीटर. तो 8 का आधा हो जाएगा आपका
4 सेंटीमीटर। ओके, इसका डायमीटर कितना है? BD। BD मीन्स BC प्लस CD, तो आपका हो गया कितना? ये 4, ये 4, तो इसका रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तब अब हम निकालेंगे किसको ना, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल AB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AD, ओके, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BD। देखो, हम शेडेड पोर्शन का जब एरिया निकालेंगे क्या करेंगे? तो एरिया पहले इसका एरिया निकाल देंगे, है कि नहीं? ये एरिया, तो यहां से AD का एरिया निकाल कर ये वाला जो एरिया है ये शेडेड नहीं है बेटा, BD वाला, तो इतना को माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ AB प्लस एरिया ऑफ AD, एरिया ऑफ AD सेमी सर्कल AD माइनस एरिया ऑफ BD, एरिया ऑफ BD। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं, बताओ? यस मैम। ओके, अब एरिया ऑफ AB का एरिया हम निकाल देंगे पाई r²/2। AB इज ए सेमी सर्कल, तो इसका रेडियस हम इसीलिए पहले लिख चुके हैं। AB जो आपका रेडियस इसका कितना है? 2, तो पाई 2² डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, पाई r²/2 प्लस ये एरिया ऑफ AD आपका हो गया बड़ा वाला जो है, इसका रेडियस आपका 6 लिख चुके हैं, तो पाई 6² डिवाइडेड बाई 2 माइनस एरिया ऑफ BD का आपका रेडियस 4 है, तो पाई 4² डिवाइडेड बाय 2। ओके, समझ में आ रहा है? अभी यहां से ना हम 2 कट कर देंगे, तो ये हो गया आपका 2 पाई। यहाँ पे कितना रहेगा? 2 पाई, 2 एक कट जाएगा, यहाँ पे देखो कितना होगा? 6 × 6, है कि नहीं? तो एक कट जाएगा और कितना रहेगा? हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 18 पाई हो जाएगा। देखो, आप लोग खुद देखो, यहाँ पे पाई इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, देखो 2 कट जाएगा 3 से, तो 3 6 = 18 पाई हो जाएगा। देखो हम लिखे हैं 18 पाई, माइनस ये भी कट जाएगा, बचा कितना? 4 × 4 और 2 एक कट जाएगा, तो 4 2 = 8 पाई माइनस 8 पाई। ओके, तो ये हो गया 20 पाई माइनस 8 पाई इक्वल टू 12 पाई। ये हो गया आपका आंसर। पाई में दिया है या फिर पाई का वैल्यू में दिया है आंसर में? हाँ, ये वैल्यू दिया है, तो 12 × 5 हम इधर लिख रहे हैं 12 × 22/7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, जो आएगा आपका 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ, ये एरिया निकल गया, अब बताओ इसमें क्या चीज समझ में नहीं आया? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड छोटा है, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं, बताओ? यस मैम, आ गया। किसको समझ में नहीं आया बताओ? सभी को समझ में आ गया? यस मैम, समझ में आ गया। ओके, अब हम लिख लो इसको, इसके बाद फिर पेरीमीटर भी दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। सेम प्रोसेस है, एरिया आप नीचे से ना एरिया मिटाकर इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। डन? यस मैम। ओके, देखो हम यहीं से मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला भी लिखिएगा, इसका आंसर इतना ही है,
अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद सबका हम रेडियस लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, सेम चीज है, आप लोग खुद बना लीजिएगा। ये ए है। अब सेम पेरीमीटर ऑफ ए बी प्लस पेरीमीटर ऑफ ए डी माइनस पेरीमीटर ऑफ बी डी, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ए बी मीन्स 2 पाई r इक्वल टू 2/2 प्लस ये हो गया ए डी 2 पाई r, यहाँ पे कितना है 6, 2 पाई 6 इंटू करके लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी इंटू 2 लिखते हैं। देन माइनस बी डी ये हो गया 4, 2 पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। अब काट दो इसको, 2 कट गया, ये 2 पाई प्लस ये कट गया 6 पाई माइनस ये भी 2 कट गया माइनस 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई इज द आंसर। और यू कैन राइट 4 इंटू 22/7, ये जो आ रहा है आपका बुक में आंसर देखकर हम लिख देते हैं, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड राइट डाउन द आंसर। 37.68 इज इक्वल टू 37.68 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पेरीमीटर। ओके, समझ में आया सबको? यस और नो? आवाज नहीं आ रहा है? हाँ यस मैम। एरिया पर और रिपीट कर दीजिए ना। एरिया तो ऑलरेडी हम मिटा दिए हैं, बाकी बता देती हूँ। देखो ए बी का एरिया निकालोगी, यहाँ से ये वाला, ये एक सेमी सर्कल है ना बेटा, और किसी को मत देखो, खाली ए बी, ये सेमी सर्कल का एरिया निकालोगी। सबका हम रेडियस लिख चुके हैं, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब है एरिया पाई r²/2। आप इसका एरिया निकाल दी, इतना पार्ट का। फिर आपको ये ए डी, ये जो पार्ट है सेमी सर्कल का, ये टोटल ए डी, इसका एरिया निकालोगी। कैसे? इसका भी रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इसका भी पाई r²/2। अब इतना जो पार्ट दिया है ना बेटा, ये अनशेडेड है, तो ये वाला जो सेमी सर्कल है बी डी, इसका भी पाई r²/2 करके इसको माइनस करना पड़ेगा। दिस प्लस दिस माइनस दिस पार्ट, तब जाकर आपका शेडेड पोर्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। हो गया ना? अभी इसको घर में बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका फोटो भी हम ले चुके हैं, स्क्रीनशॉट हम भिजवा देंगे, आप लोग भी लिख चुके हैं। इसको दोबारा फिर आप खुद बनाकर खुद समझिएगा, ठीक है? सारा चीज हम क्लियरली लिखे हैं, इसको दोबारा घर में बनाइएगा, फिर समझ में आपको बढ़िया से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबका हम रेडियस लिखे हैं, और जो आपका पता है आपको सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r²/2 हो जाएगा। अगर इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, सेमी सर्कल का बाई 2 करना है आपको। पेरीमीटर में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और आपको एरिया में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके यस मैम। चल आई रब दिस वन। मैम आप लास्ट में क्या लिखी है 37 पॉइंट के बाद? 37.68 बेटा, 68। ओके मैम। ओह सॉरी, हाँ ओके मैम क्वेश्चन नंबर बता दीजिए ना। हाँ हो गया ना ये। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, what the question has given 4 equal circles are described about 4 corners of a square so that each touches the two of the other। आपको जो ये दिया है फिगर, यू ड्रॉ इट। चार आपको सर्कल जो है एक दूसरे को टच किया है, जो कॉर्नर पर जो है इस तरह से आप यू ड्रॉ द फिगर। ओके, और इसका जो लेंथ दिया है यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर हैज गिवन। Then so that touches to the corner. Find the area of the part of the square enclosed by the circles if the side of the square is 14 centimeter। किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द स्क्वायर एनक्लोज,
ओके, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द स्क्वायर एनक्लोज्ड, इसमें आपको सबसे पहले ये चारों सर्कल सेम होगा, ये चारों सर्कल का हम एरिया निकाल देंगे, एक को निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों सर्कल का एरिया निकाल देंगे। आपको पता है इट इज ए स्क्वायर, यू कैन फाइंड आउट इट्स एरिया 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 से इसका चारों सर्कल का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सबसे पहले अभी हम फाइंड आउट करेंगे इसका जो रेडियस है ये कितना होगा, ये जो यहाँ से ये रेडियस है ये कितना होगा। ओके, तो ये कैसे, देखो ये अब जब देता है ये आपको जो एक दूसरे को टच किया है, मतलब ये इसका आधा हम अगर लेंगे, मतलब यहाँ से ये डायमीटर आपका इसका हाफ होगा, मीन्स ये डायमीटर यहाँ से ये हाफ होगा 7.7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसका रेडियस हो जाएगा इसका आधा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये मुझे लिखने का जरूरत नहीं है कि नहीं। अब आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू हाउ मच, 14 इंटू 14 196। हाँ 196। अब इसका रेडियस मिल गया आपको, रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इक्वल टू हाउ मच, कितना आ रहा है 38.5 और इंटू 4 एरिया ऑफ सर्कल, 4 सर्कल डायरेक्ट लिख देते हैं और इज इक्वल टू 4 इंटू दिस कर देते हैं, इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लीकेशन करके आपको आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, आप लिख देंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ मैम पर इसमें क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए। हाँ, दिया है ना, क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द स्क्वायर एनक्लोज्ड बाय द सर्कल इफ द साइड ऑफ द एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ये एनक्लोज के बाद जो पार्ट हुआ है उसको तो आपको निकालना है ना। ओके मैम, पर आंसर में तो खाली इतना ही दिया हुआ मैम 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, नहीं दिया है तो छोड़ दो, फिर नहीं दिया है तो छोड़ दो, एनक्लोज्ड दिया है, हाँ आफ्टर दैट रिमेनिंग पार्ट दिया ही नहीं है, तो आप दिस इज योर आंसर। ओके, हाँ रिमेनिंग पार्ट दिया ही नहीं है, एनक्लोज्ड बाय द सर्कल्स दिया है। ओके, सर्कल से जो एनक्लोज है दिस इज द एनक्लोज्ड पार्ट बाय द सर्कल्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके मैम। ओके, और एनरिचमेंट क्वेश्चन में पूछो, 2 क्वेश्चन है। इसमें डाउट नहीं है, इसमें डाउट नहीं है, इसका मतलब हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया। ये सारे क्वेश्चन को बेटा अच्छे से आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके मैम। हाँ, तो आपके लिए होमवर्क है कंप्लीट बीटी तो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, कंप्लीट हॉट्स एंड एनरिचमेंट क्वेश्चन, ओके विथ प्रैक्टिस CW ऑल्सो। ये आपके लिए होमवर्क है, कंप्लीट हॉट्स एंड एनरिचमेंट क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस CW। और everybody got the syllabus of the final term? No, I mean, our WhatsApp group there is nobody will be send the syllabus. हाँ, कौन सा सेक्शन में नहीं मिला है? मिल गया है सिलेबस फाइनल का। फाइनल का मिल गया है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। कौन बोल रहा है नहीं मिला है, नॉट सेंड? सारे ग्रुप में तो हम देख रहे हैं, भेज चुके हैं। और पार्ट 7F